I welcome everyone to this episode of Read with a Teacher. And we have now come to the summer, and with summer, we have new books, new readers, and amazing friends. In fact, everybody is amazing who takes interest in any program which is related to reading. So I welcome the extraordinary friends here at the Zoom link, and also those who will be watching on Facebook right now or later. So I welcome everybody. With us, we have today Vandana ma'am, a Fulbright scholar working with us, someone who is a friend, colleague, and someone who inspires. And with us, we have an extraordinary leader, Mr. B.K. Sharma, who is actually leading the future of education in Delhi. And you will come to know soon about what he is doing and how he has been actually leading from the front about the campaign about the reading in English, and now a future is school. So it's a great privilege for all of us here at Read with a Teacher to be together with Vandana ma'am and B.K. Sharma sir today at Read with a Teacher. So I welcome both B.K. Sharma sir and Vandana ma'am to this Read with a Teacher for this episode. And we are going to discuss a very interesting book and a wonderful philosopher which each Indian can be proud of, that we belong to a nation which produces philosopher like J. Krishnamurti. So as you can see on the screen also, we have a book, Freedom from the Known, and we are going to read it. So all of you who are interested in life and the questions of life, like fear, love, pleasure, death, insecurity, and you add it, and almost every question Krishnamurti deals with so fearlessly. I guarantee you becoming a part of this session, moving out, you will be a different person. Such a deep conversation it enables. So waiting for such wonderful conversation, I am bringing here my distinguished guest, B.K. Sharma sir first, and then I will be reaching out to Vandana ma'am for the conversation on the book. And with us, as always, we have co-host Chandan ji, who will be sharing with us the insights that he always brings. So Sharma sir, welcome to this, and we are really eager to hear you as a leader. For many, many years, I think for more than 2 decades, you have been driving different campaigns. You are leading and actually adding value to the reading. So we would really love to know your story so that we get inspired at how we can further move in this journey of reading together. Welcome, Sharma sir. थैंक यू मुरारी जी। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और मुरारी जी, चंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया, और जितनी सारी बातें मुरारी जी ने मेरे बारे में बताई, मतलब मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं ये सबको डिजर्व करता हूँ कि नहीं, बट द वर्ड्स दैट यू हैव said, I'm really grateful and thankful to all. Murari ji, as far as question of reading is concerned, I would like to start with some of my past experience, how myself I developed myself as a reader. And if I start from my childhood, I would like to share a few things, because I firmly believe that if you want someone to inculcate the reading habit, you will have to catch them young. रीडिंग वैल्यू एक ऐसी चीज है कि जो अगर हम बच्चे में बहुत शुरुआत से डाल दें, चाहे वो किसी भी तरह से, तो वो आगे आने वाले समय में एक एविड रीडर बनता है। लेकिन इसकी शुरुआत हमें बहुत ही पहले से करनी पड़ती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैं ये मान लीजिए कि कक्षा 5 में था जब हमने गांव में रहा करते थे। हमारे पिताजी पंडित थे, तो छोटी छोटी किताबें आया करती थी, कल्याण और चंपक, नंदन, इस तरह की चीजें आया करती थी। तो हम लोग बचपन में ही ये सब चीजें पढ़ा करते थे, और कई बार तो डांट भी खानी पड़ती थी कि भाई तुम अपनी टेक्स्ट बुक तो पढ़ते नहीं हो, ये सारा दिन ये सब चीजें पढ़ते रहते हो। और उन दिनों एक बड़ा प्रचलन था गांव में भी कि लोग ना छोटे छोटे उपन्यास आया करते थे,
जी। जो उपन्यास हुआ तो डिफरेंट किस्म के वो हुआ करते थे, तो हम उन पर कई बार तो चोरी छिपे टेक्स्ट हम्म। बुक की जिल्द चढ़ा लिया करते थे और अंदर उसको रख करके पढ़ा करते थे। तो जी बहुत जी। मतलब जैसे हमने देखा कि किसी को ये लगेगा कि भाई अपने टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जिल्द टेक्स्ट बुक की हुआ करती थी और अंदर उसके नॉवेल्स हुआ करते थे, हाँ उपन्यास हाँ। हुआ करते थे, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हुआ करते थे। जी भूत की जी जी। हवेली, कठपुतली, खूनी हाँ हाँ। रिश्ता, इस तरह की वो चीजें हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि पारिवारिक एक ऐसी वो थी कि पंडित थे पिताजी, तो हम लोगों को बचपन में ही सुख सागर, रामचरितमानस, इस तरह की किताबें भी हम पढ़ा करते थे। राइट स्कूल राइट। में जो हमारे टीचर्स थे वो हमें चंपक, नंदन, चंदा मामा, चाचा चौधरी की किताबें, जी ये सब चीजें हमें उसी समय आदत डाल दी गई थी। और जी मुझे अच्छी तरह याद है कि कई बार तो डांट भी खानी पड़ती थी, पिटाई तो उसको नहीं कहेंगे। ये टीचर्स लोगों को मतलब हम लोगों पर एक तरह का ऐसा वो था कि भाई आप इस तरह की चीजें ना पढ़ें, क्योंकि जी। जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे हम्म, दिमाग में किस तरह का इनपुट आ रहा है, हम किस तरह पढ़ रहे हैं। किताबें तो बहुत हैं, लेकिन उनका चयन करना भी अपने आप में बहुत आवश्यक है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ता है। तो ये तो हम मैं अपने मतलब बचपन की बातें बताई मैंने आपको कि हम जी जी। टेक्स्ट बुक के अलावा और ये सब भी पढ़ा करते थे। और फैंटास्टिक। रीडिंग, वैल्यू ऑफ रीडिंग में आप ये मान करके चलिए कि एक बार अगर आपको आदत पड़ जाती है पढ़ने की, तो वो फिर आगे आगे आपको चढ़ती चली जाती है और वो आपके हर क्षेत्र में आपको बहुत ही योगदान देती है। जब आपको जी रीडिंग हैबिट बन जाएगी तो आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आप चाहे फिर एकेडमिक्स में हो चाहे कहीं भी हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, आपकी शब्दावली बढ़ती है। और ये आदत अभी अनफॉर्चुनेटली बड़ी एक तरह से लुप्त सी होती जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत प्रयास करते हैं एज ए टीचर भी। मैंने ये मानिए कि 1985 में जब 1989 में जब मैंने बीएड कंप्लीट करने के बाद जब स्कूल में शुरू किया, जी। तो एज ए टीचर मेरी यही एक इच्छा थी कि रीडिंग हैबिट हम डेवलप करें। तो मुझे याद है कि मैंने स्कूल उसका नाम हमने रखा था बढ़ते कदम। तो वहां पर हम ओह। क्या करते थे कि तो उसको हम वॉल मैगजीन में हर एक क्लास की हर बच्चे की ड्यूटी लगाते थे कि भाई आप ना कोई भी एक किताब पढ़िए, वो हम्म किताब हम आपको फ्री देंगे, हम्म लाइब्रेरी से आप इशू करिए और हम्म उसका सारांश, उसकी एक जो भी आपको उसमें अच्छा लगा उसके कैरेक्टर के बारे में आप लिखिए और उस हम्म जो वॉल मैगजीन है जो हम्म। दीवार पर लगी हुई है आप उस पर आप लगाइए। फिर हम राइट। बच्चों से इसके सर आप सर म्यूट हो गए। हाँ, एक्चुअली अनम्यूट एक बार कर लीजिए सर, ये मेरे तरफ से हुआ गलती से। हाँ तो हाँ। मैं आपको बता रहा था कि बढ़ते कदम से हमने शुरुआत की थी, हमने वॉल मैगजीन से शुरू किया था, हम्म क्योंकि हर स्कूल की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, नंबर हम्म ऑफ कॉपीज अवेलेबल हैं, फिर लाइब्रेरियन का कितना इंटरेस्ट है, कितनी हम्म, फॉर्मेलिटीज हैं, और किताबें इशू करना, फिर उसको बच्चों को उनको कई बार उसको फाड़ देना, इस तरह की चीजों से बचने के लिए हमने एक ये जी। रास्ता निकाला और बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो बच्चे फैंटास्टिक। इनको पढ़ने लगे, तो एक तो हमने ये प्रयास किया था। हम्म। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम स्कूल में और आगे बढ़ते चले गए एज ए टीचर, तो फिर हम बच्चों को उपहार के रूप में किताब ही दिया करते थे। मतलब कभी अमेजिंग। कोई ज्योमेट्री बॉक्स दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, लेकिन मेरा तो शुरू से ही एनबीटी से बल्क में किताबें खरीद लेता हूँ और फिर हम्म। उसको बच्चे को किसी भी हो पारितोषिक रूप में किताबें देता हूँ। और एक आदत ये है कि किताबें देने के बाद मैं भूलता नहीं हूँ, मैं अरे फिर वाह। उसको कभी करके पूछ लेता हूँ कि भाई मैंने आपको किताब दी थी, आपने पढ़ी? तो अगर दैट्स वो झूठ अमेजिंग। बोले दिस मैं इज वंडरफुल पूछ लेता हूँ एक्चुअली। कि भाई मैं किताब तो आपने ले ली, लेकिन अगर ए, आपने वो किताब ने सजा दी तो हाँ। भाई उसका फायदा नहीं। और हम्म। अगर वो कहेगा, क्योंकि मैं पहले उस किताब को पढ़ लेता हूँ हाँ और पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा नोट बना लेता हूँ और फिर हाँ। मैं फॉलो करता हूँ। कई बार हम्म। तो बच्चे और कुछ लोग मजाक भी बना लेते हैं कि यार इनसे किताब लेना बड़ा महंगा पड़ता है, ये जब मर्जी पूछ लेते हैं, अच्छा। इससे अच्छा तो कोई और गिफ्ट मिल जाता है। लेकिन कई ये सारी आपने ऐसी एक चीजें हैं। ये आपने एक बहुत बड़ा क्लू दिया कि जो हमारे स्कूल लीडर्स हैं वो अगर टीचर्स को ऐसे ही चलते फिरते किताब हाथ में पकड़ा दें
और कुछ 15 दिनों के बाद एक बार पूछ लें कि आपको जो मैंने किताब दिया था उसमें से कुछ पढ़ा, तो आई एम मतलब लाइक श्योर इट्स गोइंग टू वर्क वंडरफुली। आई मीन जरूर सब पढ़ेंगे फिर। हाँ, नहीं उसमें एक ये भी है मुरारी जी कि आपने अगर खुद बुक नहीं पढ़ी, तो हाँ मुझे पता है कि जिनको मैं बुक्स देता हूँ वो नहीं सुन रहे हैं इस बात को। ये हाँ जरूरी नहीं है कि वो किताब देने से पहले मैंने पढ़ी हो, हाँ, लेकिन पूछने में कोई बुराई नहीं है, उसको ये लगना कोई चाहिए बुराई कि नहीं। पढ़ रखी है। और अगर आप करते भी है ना, हम्म, तो फिर हम उसको कहते हैं चलो यार आज तो मतलब सिर्फ रिमाइंड करा दिया उसको कि भाई आपको हाँ बुक दी थी हमने, अब आप हाँ, हमें पढ़ना है उसको। और उसको ab- ये लगता है कि यार उन्होंने बुक दी थी और मैं अगर फीडबैक नहीं दूंगा तो उनको बुरा लगेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हम्म बड़ा एक तरह का एक बड़ा अच्छा तरीका है ये। तो फिर कई हम्म। बार हम बड़ा तो पैकेट्स भी नहीं खोलते अनफॉर्चुनेटली कि जो उनको बुक दी जाती है। इनफैक्ट सर अच्छा, आपने हम लोगों उसके को, बाद आपने एक सेकंड रोकूंगा, हम लोगों को एक बहुत बड़ा क्लू दे दिया है। अब हम सभी मेंटर टीचर्स के पास सैकड़ों किताबें आ गई है। अभी जो सरकार की तरफ से हम लोगों को कहा गया, अब हम लोग स्कूल जाया करेंगे और ऐसे ही किताबें दे दिया करेंगे अपने साथियों को और पूछा करेंगे कुछ दिनों के बाद कि हमने एक किताब दी थी आपको। तो वी होप कि इट माइट वर्क। एक बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी आपने शेयर किया हमारे साथ। जी जी सर सर। हाँ, इसमें मुरारी जी एक चीज हम और कर सकते हैं जो मैंने किया है हाँ हाँ। अपने स्कूल में ही। मैंने हर क्लास में एक हैंगिंग लाइब्रेरी बनाई। मतलब हर क्लास की विंडो पे एक रस्सी हम्म पर किताबें टंगी हुई हैं, हम्म और उसी क्लास का एक बच्चा लाइब्रेरियन का काम करता है। वो हम्म ये ध्यान रखता है कि बच्चे यहाँ से किताबें लें, फिर हम्म। उसको पढ़ें और फिर उसको वाह, वहीं रखें। वो दैट्स रिकॉर्ड रखता है। हम्म और इस बहाने किताबों का जहाँ तक सवाल है, किताबों का स्टैंडर्ड हम वही रखते हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट की हो। टेक्स्ट बुक हम अवॉइड करते हैं, और छोटी फैंटास्टिक। छोटी मैगजीन हैं या स्टोरी बुक हैं तो वो बच्चे पढ़ते हैं। और हम इसी तरह का कोई कि भाई किताबें फट जाएंगी या बच्चा किताब चोरी कर लेगा, हम इस तरह की चीजें दिमाग में लाते ही नहीं। क्योंकि वेरी क्योंकि अगर ये भी सोचेंगे तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। नाइस। लाइब्रेरी में भी लाइब्रेरियन को ये इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कि भाई देखो, बच्चे को आप जब किताब मांगे तो आप किताब दो। आप ये चिंता मत करिए कि बच्चा किताब फाड़ देगा तो नई किताब आ जाएगी, और वो जी फाड़ेगा नहीं। जी। बच्चे टेक्स्ट बुक का तो देखो, मैं जहाँ तक सवाल है उसमें तो बच्चे कई बार शैतानी कर देते हैं कि हम्म उसका हम उसको कहा करते थे कि लाइब्रेरी में जा करके बच्चे फर्रे बनाने के लिए पेज फाड़ लेते हैं। तो वो तो अब कल्चर बहुत कम होती जा रही है। और राइट। बच्चों को अगर उनके इंटरेस्ट की अगर हम बुक्स देते हैं तो यकीन हम्म मानिए, टेक्स्ट बुक का तो मैं नहीं कहता, तो शायद उसको लेकिन अगर हम कोई भी मैगजीन या स्टोरी बुक और यूज्ड बुक्स भी अगर हम लाइब्रेरी में रखते हैं तो हम्म वो बच्चों को मोटिवेट करती है। इसी तरीके से हमने एक नया मैंने शुरू किया है जो स्कूल से भी हट करके है, कि हम्म उसमें एक हमने हैप्पी रीडिंग क्लब बनाया है। अब हम्म मैंने अभी 20,000 रुपीज जो मिले थे हम्म मेंटोर को, एसपीज को, मैंने हम्म। उसकी जितनी भी बुक्स खरीदी है तो मैंने वो सारी बुक्स अपने व्हाट्सएप पे डाल दी है कि भाई अच्छा। रीड एंड रिटर्न। वाह। जितने भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड है मेरी अपनी सोसाइटी में हो, चाहे स्कूल के बच्चे हों, ये बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। आप इनको मुझसे फैंटास्टिक। ले सकते हैं और पढ़ने के बाद आप हम्म इसको मुझे वापस दे सकते हैं। लेकिन हम्म शर्त एक रहेगी कि इस हम्म, किताब में क्या लिखा है। हाँ। तो मैंने कहा आप मुझे चाहे 10 लाइन में लिख के बता दो, या अरे कोई वाह, एक कैरेक्टर करके बता दो, या हाँ, इसमें क्या हुआ मैं पूछूंगा। तो उससे मेरा दो फायदे हो जाते हैं। एक तो मुझे हम्म पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ती, हम्म। क्योंकि जिसने पढ़ी है, एक बुक पढ़ी है, उससे थोड़ा सा आइडिया आप ले लेंगे तो आपको भी उसका एक आइडिया मिल जाता है। तो एक एब्सोल्युटली। ये भी बहुत अच्छा तरीका है रीडिंग को इनकलकेट करने का। मैं एब्सोल्युटली। कई बार कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करता हूँ, अपनी जो भी जानकार लोग जो रिटायर हो गए हैं या जिनको पढ़ने का शौक है, तो वो उनको जब हम बुक्स उनसे पूछ लेते हैं, मैं उनको फिर एक अपनी ड्यूटी समझ लेता हूँ कि भाई जी। पूछता रहता हूँ, अंकल आपने ये किताब पढ़ ली? वो कहेंगे हाँ मैंने पढ़ ली। मैंने कहा मैं दूसरी भेज रहा हूँ। हम्म। तो एक ये भी एक तरह से सोशल वर्क भी हो गया, और जिन लोगों को पढ़ने का शौक है उनकी एक्सेसिबिलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनके पास चली जाती है। बस एब्सोल्युटली। कॉस्ट एक तरह की मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई देखो, जो भी किताब लेकर के जाओगे, हम्म। उस किताब पर जब भी मैं चर्चा करूं तो मुझे निराशा नहीं होनी चाहिए कि आपने उसको पढ़ा है। जी जी तो जी। इस तरह का एक बड़ा अच्छा इंकरेजमेंट मिलता है। बहुत तो शानदार, बहुत। जी। तो ये एक इंसेंटिव जरूर रखा जाए
कि बच्चों को जैसे किसी का बर्थडे अगर आ रहा है तो बच्चे को देखो उसका स्टेटस लेवल क्या है। बच्चों को मैं कई बार विजुअल इंसाइक्लोपीडिया खरीद लेता हूँ। छोटे हम्म, बच्चे किसी का फ्रेंड है उससे पूछता हूँ तुम्हारा बच्चा कौन सी क्लास में है, हम्म, तो वहां पर फिर हम उनको उनके बर्थडे पर या उस पर हम इसी तरह की जो बुक्स हैं उनका हम्म, बहुत कलेक्शन है और मैं काफी पैसा खर्च करता हूँ किताबों पर शुरू जी, से ही। मेरी अपनी पर्सनल कलेक्शन भी बहुत बड़ी कलेक्शन है। हम्म, हालांकि अभी तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुझे तो कई बार एक चीज आपसे मैं शेयर करूंगा कि हम्म, एक बार हम अपनी पूरी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ एक पिकनिक पे गए हुए थे। हम्म, तो मैं वहां भी जाता हूँ तो अपने साथ कुछ ना कुछ पढ़ने को लेके जाता हूँ। किसी वाह, के घर जाता हूँ तो वहां भी मुझे अगर कुछ पढ़ने को मिल जाए तो मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। हम्म, तो उसमें हम पार्क में बैठे हुए थे, फ्रेंड मेरे के साथ में, तो उनसे मेरे बेटे ने पूछा कि वो उन मेरे बेटे से पूछा उन्होंने कि भाई तुम्हारे पापा नहीं दिख रहे कहाँ है। कहता हम्म, वो देखो किसी बेंच पे कोने पर बैठे हुए पढ़ रहे होंगे। तो दे हम्म, फाउंड मी रीडिंग इवन इन दैट। जी, तो इस तरह का एक ये जो कहना चाहिए सोच है, मेरा हम्म, अपना मानना है कि ये चीजें हमें शुरुआत से जैसे हमारे अंदर आदतें हमने शुरू से चीजें सीखी, हम्म, अपने बच्चों में हम जरूर डालें। रीडिंग का एब्सोल्यूट, तो एक उनको चाहे वो पैराग्राफ पढ़ें, चाहे वो एक हाँ, छोटी सी किताब पढ़ें और डिफिकल्ट बुक्स ना निकालें उनको। मतलब हम्म, शुरुआत में ही आप अगर छोटी छोटी ऐसी किताबें दें जो सिलेबस से हटकर हों, चाहे वो किसी जी, तरह की कहानियां हों, हम्म, पिक्चर से रिलेटेड बुक्स हों, तो हम्म, ये शुरुआत हम लोगों ने स्कूलों में भी की बहुत हुई है बहुत सारा, और में भी इस तरह की बहुत सारी चीजें रखी जी, हुई हैं। तो दिस इज व्हाट बेसिकली वी हैव बीन डूइंग। और थैंक यू अभी मैं सर, जी, एक हैप्पी रीडिंग क्लब का मैं प्लान कर रहा हूँ हम्म, कि काफी हैप्पी रीडिंग क्लब बनाएं और उसमें भी इसी तरह से हम बुक्स, कुछ लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुक्स डोनेट करते हैं, उनके हम्म, पास अपनी बुक्स हैं तो वो भी हम लाइब्रेरी में रख लेते हैं और उसका एक एब्सोल्यूट। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके हम बच्चों को वो भी दिखा देते हैं। तो तो ये इस आपसे तरह का सिर्फ मुझे, लॉकडाउन में तो हम लोगों ने बहुत। हाँ जी। शर्मा सर, जी आपसे मुरारी जी मुझे बताइए। सिर्फ एक परमिशन चाहिए कि जितनी जो आपने स्ट्रेटजी शेयर किया ये हम वाइडली शेयर कर सकते हैं ना लोगों के साथ, कि पता चल जाए कि कैसे हाँ कैसे डेफिनेटली। किताबें पढ़वाई जा सकती। और मुझे हाँ लगता है बिल्कुल। आपने जो ये शब्द इस्तेमाल किया कि देखो कोने में पढ़ रहा होगा, शायद इससे सुंदर शब्द किसी के लिए कहा नहीं जा सकता है। तो ये तो वी ऑल वुड लव टू बी हर्ड फ्रॉम समवन। अगर हमें कोई ढूंढता रहे और ये कहा जाए कि देखो कोने में बैठ के कहीं पढ़ रहा होगा, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट सेंटेंस वन कैन यूज। जी शर्मा सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारी स्टोरीज आपके पास है, एक सीजन्ड लीडर हैं आप, और हम लोग which we are yet to think that you have already experimented, जो हमें थोड़ी देर ही आपको सुन के हम लोगों को पता चलता है सर। तो अगर कुछ बहुत जी ऐसा जी। लग रहा है आपको जो छूट रहा है तो आप प्लीज शेयर कीजिए। अदरवाइज हम एक फुल सेशन में आपको इनवाइट करना चाहेंगे जहाँ पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा आप ही से बात करेंगे सर। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक जी, यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, इट वाज सो एनरिचिंग हियरिंग यू सर। अब अगर आप 1 घंटा मतलब थोड़ी देर निकाल पाए हमारे साथ बने रहें, तो देर इज नथिंग ग्रेटर देन दिस मैं सर अदर। पूरा टाइम बना रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, मैं थैंक यू आपके वेरी साथ पूरा टाइम बना रहूंगा क्योंकि मेरा तो एक ये पैशन है मच। और जी, मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने दिल की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं, मेरे पास अपने ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज हैं कि जिन जी, बच्चों के साथ और जिन लोगों के साथ मैंने ये शुरुआत की थी वो जी, आज बहुत अच्छी जगहों पर इस जी, हैबिट की वजह से अब हम्म, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव हो रहा है और उनको खुद की फिर बुक्स पढ़ने की आदतें उनको जी। बहुत मदद कर रहे हैं। तो तो बहुत हमारे जो बहुत बहुत, धन्यवाद। और जी, मैं जी, जी, और मैं आपके साथ अभी पूरे समय तक बना रहूंगा और मैं थैंक यू। आपको डेफिनेटली शेयर तो हम करूंगा अपने अच्छी सभी चीजें। साथियों को जो जुड़े हैं और उनमें से कुछ अगर शर्मा सर को नहीं जान रहे होंगे तो उन्हें बता दूं कि शर्मा सर, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ही इज लीडिंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। सर डिवी जो हमारा दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल है उसको लीड कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाई वी नीड सच वाइब्रेंट लीडर जो इतने आइडियाज से भरे हुए हैं और नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। नाउ और आई, गाड़ी जी एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। जी, जी, मैं जी, मतलब वर्चुअल तो अभी हमने शुरुआत ही की है, लेकिन हमने स्पोकन इंग्लिश को भी मैंने हेड किया है हाँ, और एब्सोल्यूट, उसमें हमने 62,000 बच्चों के अंदर इस तरह हम्म, की वैल्यू जनरेट करने की कोशिश की है। वहां पर हम्म, भी हमने रीडिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दी है।
और वहां पर भी अगर हम अपना सक्सेस रेट देखेंगे तो बहुत इंकरेजिंग पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो अगर हम चाहेंगे, और मेंटोर टीचर्स का और बाकी सब लोगों का इस पूरे मिशन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये हम कर पाए, और उम्मीद Thank you. करते हैं कि आगे हम और करेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये Thank- शुरुआत है, जी। अभी तो बहुत कुछ करना है, एंड वी विल बी एबल टू डू दैट। Thank you very much, sir. So now I welcome Vandana ma'am, and many of us are already aware. So Vandana ma'am, एक सवाल, हम ज़्यादा आपके इंट्रोडक्शन पे नहीं जानते हैं, सभी लोग जानते हैं आप एक फुलब्राइट स्कॉलर हैं, आप हमेशा दूसरों को इंस्पायर करती हैं, खास करके मुझे आपने बहुत इंस्पायर किया हुआ है। So we quickly come कि जो इतना फेनोमेनल स्कॉलर आप बनी, टीचर एंड स्कॉलर, इसकी क्या जर्नी रही, कैसे आप किताबें पढ़ती रही? तो मेरी जर्नी बहुत सिंपल रही है, और नमस्कार सभी को। थैंक यू ये प्लेटफॉर्म मुझे ऑफर करने के लिए। एंड आई थिंक विदाउट गेटिंग इनटू एनी फॉर्मेलिटीज आई ट्राई टू कम स्ट्रेट टू इट। ये जर्नी किसी भी टीचर या किसी जैसी हमारी उस समय में ग्रोइंग जर्नी रही है सभी की, उससे बहुत इतर नहीं है। So it's always like the childhood love for reading starts with people, with elders, with teachers inspiring you to read. मुझे अभी भी याद पड़ता है कि उसकी जर्नी शुरू हुई थी कि मैं अपने ननिहाल में चीनी भूल गए थे, तो आधी दे दो चीनी के साथ। कहाँ से ऑल म्यूट का ऑप्शन होता है चंदन जी, जरा देखिए एक बार। I will do that. राइट। मैम एक बार अनम्यूट कर लें आप खुद को। Am I audible now? Yes. Yeah. Right. So my journey started with my ननिहाल, जहाँ से मुझे जबरदस्ती अमर चित्र कथा जो थी वो लगवाई गई अखबार वाले के थ्रू, और वो भी अंग्रेजी में, जिसको पढ़ने की बाध्यता थी मेरे ऊपर। बट अमर चित्र कथा पढ़ते पढ़ते ही शायद इतना सारा माइथोलॉजी जो लोग नहीं जानते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं, मैं उससे बहुत वेल वर्स थी बचपन से ही, और उसने एक रीडिंग के लिए एक लव भी शायद इनकलकेट किया। उसके अलावा बेड टाइम स्टोरीज जो मेरे नाना जी मुझे सुनाया करते थे, और फिर और भी ज्यादा स्टोरीज को एक्सप्लोर करने की इच्छा, उसने शायद रीडिंग के इस इंटरेस्ट को इनकलकेट किया, उसको नर्चर किया। देन फॉर्चुनेटली आई वेंट टू अ स्कूल जहाँ पर एक टीचर थी जो खुद एक एविड रीडर थी। बट आई रिमेम्बर अ प्रैक्टिस व्हिच शी यूज्ड टू डू दैट इन द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन। वो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते थे, स्वयं टेक्सन्स बुक शॉप जाकर के उनके लिए उतनी नंबर ऑफ बुक्स खरीद लाती थी, और उसके बाद हम सबको एक एक बुक डिस्ट्रीब्यूट होती थी, एंड वी वर सपोज टू एक्सचेंज दैट बुक एवरी फ्राइडे with our partner. So it so happened that by the end of the year हम सभी 34 बुक्स पढ़ चुके होते थे। ओह फैंटास्टिक। बाय द एंड ऑफ द ईयर रीड विद अ टीचर पे हम 24 बुक पढ़ लेंगे, मतलब। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जर्नी शुरू हुई, एंड आई बिलीव वो पहले, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि उन्होंने हम पे कभी ये लादा नहीं कि हम क्या पढ़ें उनकी तरफ से, लेकिन Nancy Drew and the Secret of the Old Attic, I remember that was the Nancy Drew series, mystery series, which we started reading from. और जीवन के अलग अलग फेज में शायद रीडिंग के मायने अलग अलग हो जाते हैं। वैसे उसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि कौन कितनी ज्यादा किताबें पढ़ सकता है, शायद एक कॉम्पिटिशन के थ्रू ही, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लाइफ की जर्नी अनफोल्ड होती गई, इवॉल्व होती गई, वैसे वैसे रीडिंग के मायने, रीडिंग के कॉजेस भी बदलने लगे। तो लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, जो और यहाँ पे चंदन जी के शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा। इन्होंने एक बड़ा अच्छा लाइन क्वाइन किया कि पढ़े लिखे टीचर से पढ़ते लिखते टीचर, दैट आई फाउंड सो अमेजिंग। तो आपने भी जो भी स्टोरी शेयर किया कि एक एविड रीडर जो टीचर थी, उसने बहुत डीपली इंस्पायर किया। इसका मतलब जो भी किताबें पढ़ते हैं और जो भी रीड विद अ टीचर प्रोग्राम पे हमारे साथ होते हैं, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू इन्फ्लुएंस डीपली to their students about reading. आपकी स्टोरी से ऐसा लग रहा है। जी। तो जो कहा कि डिजायर ही होती है जो कंपेलिंग होती है, सो ऑल दीज टीचर्स हु आर देयर विद अस टुडे, कहीं ना कहीं वो कंपेलिंग डिजायर ही है उसको एक्सप्लोर करने की, जो हमें आज हम सभी के साथ बनी हुई है, और हम सब इस मंच पर जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से।
तो जैसा कि मैंने कहा कि उसके बाद अपने बढ़ते हुए दिनों में लाइक विद इन माय ड्यूरिंग माय ग्रोइंग इयर्स वो जो लव था वो और इंक्रीज होता, क्योंकि समय था तो इसलिए वो पढ़ना पढ़ाना होता रहा. And then when I became a teacher, I started that same practice which I had learned from my own teachers. And then I became the editor of my school magazine, where then I started inspiring the students to write. Wow. Because reading culminates into a natural expression when you write, when you attempt to write. Absolutely. And then again, when I was a mother, I was then resorting to the old way of reading out bedtime stories to my children. When then again inculcated that love for reading in my daughter to explore more stories and go ahead about it. And then came a phase when I was married, and then I came to the thought that reading books and collecting books were two different hobbies. So Exactly. I could still not give away my my penchant for always purchasing books. Yeah. But I found myself helpless that I was not able to read all of them with the same ardentness with which I used to do it before. But So- I think one can leads to other at any moment of time. जो कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कि transformation doesn't require time. तो अगर आप किताबें खरीदती भी रहती हैं, तो it can at any moment can take you to the reading, I think. Right. So it, as I एंड said, यहाँ पर मैं एक मोमेंट लेना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा, क्योंकि कई साथी अभी जुड़े हैं कि हमारी बुक जो है वो है फ्रीडम फ्रॉम द नोट, जो कि जेके कृष्णमूर्ति की लिखी है. आज मेरे पास भी है. ठीक है. Vandana ma'am, you have the book with you? Yes. because I am supposed to read from it, so yes, it's there. Murari sir, show the book please. So we all have like different cover. Different editions. Yeah, different editions. Please go ahead, ma'am. Yeah. And so now if I consider the phase now, then it's a different phase altogether, because now when you pick up the books, it is out of your own turmoil, your own brainstorming, the own churning which goes within to find out certain questions of existentialism, find out the meaning or purpose of your own life, to find out about how unbalanced or how out of sync you are, or how synchronized you are within and outwards. There is a conflict, there is a contradiction. Right. So to deal with that conflict and contradiction, to come to terms with it, to find out the answers to certain pertinent questions, I think ab ye phase hai life ka when you read a book or you pick up the book primarily to find answers to those. Exactly. बहुत beautifully आपने end किया है अपने जर्नी की कहानी को, मतलब क्वेश्चन सीकिंग को. और मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे साथी करीब अब आधे घंटे से हैं, कि एक ब्रीफ आप जरूर दें इस बुक के बारे में, एंड देन वी गो to discuss some very relevant aspects which are like we deal with everyday in everyday life. तो मैं कृष्णमूर्ति के ही शब्द में वो सवाल आपके सामने रखता हूँ, या जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कि man has always asked the question, जो अभी आपने पूछा, what is it all about? Has life any meaning at all? He sees the enormous confusion of life, the brutalities, the revolts, the wars, the endless divisions of religion, ideology, and nationality. And with a sense of deep, abiding frustration, he asks, what is one to do? What is this thing we call living? Is there any things beyond it? So I think इन्हीं सवालों को शायद अब इन सवालों से जो एक तरीके से आप एक ब्रीफिंग देंगे कि what we are going to cover, and then we go like discussing about certain important issues, as we cannot in a limited hour program discuss everything. जी वंदना. I agree. So Krishnamurti is regarded as one of the greatest thinkers and philosophers of his time, so much so that the Dalai Lama calls him as one of the greatest thinkers of the age, and of course George Bernard Shaw declares that he's the absolutely the most beautiful human being that he'd ever met. So with those kind of that kind of discourse going around about him, I can certainly say that one of the most compelling things which is there about this book is that it is not in an attempt to, though Jiddu is a philosopher, but he has no attempt
not attempted at all to make any followers. In fact, he says that teachers destroy followers and followers destroy teachers. So Right. his book is not an attempt to, Yeah. is not an attempt to have followers around, but Yeah. in fact, with very brutal honesty, he says that you can question the truth of what I'm saying. So what is most compelling is that he takes no sides. He himself rejects his calling of the World Teacher of Theosophical Society, which he had once joined. No, he does not come about as a guide to his reader. Rather, he challenges his audience to test the truth of what he's propounding. And of course, as I said, that he writes, order imposed from without must always breed disorder. So he says that something which is imposed from outside always breeds disorder. So it's always a safer space to go inside and reflect. So he asks you to be your own teacher, your own disciple. And then, yes, the most beautiful thing about the book is how it kind of very compellingly, beats about certain very common notions, certain common emotions which we all go through, like love, like fear, like attention, like concentration. And the kind of comparisons that he makes कि attention versus concentration क्या है. तो जब मैं उनकी किताब में concentration के बारे में पढ़ती हूँ वो क्या है, तो बिल्कुल ही different नजर आता है. और फिर मुझे अपने आप से प्रश्न करना पड़ता है कि जो हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि concentrate करिए, वो कितनी बड़ी fallacy है. और ऐसे बहुत सारे चीजों को जिसको हम joy कह रहे हैं, so joy versus pleasure, attention versus concentration, इस तरह की बहुत सारी चीजों पर वो बहुत कंपेलिंग एक डिस्कोर्स देते हैं जो आपको स्वयं अपने आप को अपनी परिस्थितियों में रख करके देखने के लिए मजबूर कर देता है. और मुझे याद आ रहा है वंदना मैम, आप मुझे कहिएगा कि अभी मत रोको अगर कभी ऐसा लगेगा कि आप अगर कुछ बता रही हो तो ठीक है. कि जब आपसे बात हो रही थी कि शुरुआत में, जैसे मुझे याद है करीब 10 साल पहले जब मैंने ये किताब पढ़ी थी, तो आई फाउंड इट एक्सट्रीमली टफ टू अंडरस्टैंड. So we would also like to bring it to our readers. It's perhaps not so easy to understand what Krishnamurti is saying. Particularly उनका जो एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है जो इस किताब में भी उन्होंने दिया हुआ है कि वो कहते हैं कि तुम कंडीशनिंग से फ्री होकर के चीजों को देखो. जैसे वो कहते हैं कि अगर आप पेड़ को देख रहे हो तो सिर्फ पेड़ को देखो. अगर आप ये समझ रहे हो कि आप आम का पेड़ देख रहे हो या जामुन का पेड़ देख रहे हो, तो ये जो शब्द है आम या जामुन, ये आपकी सोशलाइजेशन से आता है, आपकी कंडीशनिंग से आता है, जो आपको एक्चुअली आपके देखने और पेड़ के बीच में एक दीवार बन जाता है. इसका मतलब उस वक्त आप देख नहीं रहे होते हो, यू आर लुकिंग थ्रू दैट कंडीशनिंग, थ्रू दैट सोशलाइजेशन. तो जब मैंने 10 साल पहले देखा था तो मुझे लगा कि यार अजीब पागलपन है, ऐसे भी कहीं देखा जा सकता है. आप आम के पेड़ को बिना ये जाने कि आम का पेड़ है कैसे देख सकते हो. तो मतलब आई फाउंड इट एक्चुअली एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. बट अब जब मैंने पढ़ा है तो I have understood it differently. थोड़ी सी समझ बनी है, ये मैं कह सकता हूँ. जी वंदना. जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कृष्णमूर्ति इतने प्रोफाउंड राइटर हैं और इतना डीपली लिखते हैं कि उनको शायद एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. मैंने भी किताब को पढ़ते हुए कई पॉइंट्स पर दोबारा पढ़ने की कोशिश की, थोड़ा स्ट्रगल किया. और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो हर नोशन पे आपके जो इनफैक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो कहते हैं कि वी आर ऑल सेकेंड हैंड पीपल. Right. So for centuries, he writes. I'll try to read out that excerpt, which actually absolutely was parallel with what you were discussing right now. आम को उसके botanical नाम से जानने की बात नहीं है. जब तक वो botanical name आपके और उस आम के पेड़ के बीच में रहेगा, तब तक आप उसको छूकर, उसको intrinsically उसको feel करके, देख करके, tangibly आप उस एहसास को जी नहीं पाएंगे. So he says, for centuries we've been spoon-fed by our teachers, by our authorities, by our books, by our saints. We are actually living on words, and our life is shallow and empty. And that is why we are second-hand people. We have lived on what we have been told, either guided by our inclinations, our tendencies, or compelled to accept by circumstances and environment. So we are the result of all kinds of influences, and there is nothing new in us. Nothing that we have discovered for ourselves,
nothing that is original, nothing that is pristine, nothing that is clear. So such a sorry state of affairs that philosopher is bringing to us. और उसी में वो ऐड करते हुए, I would just like to read वंदना मैम, वो आगे जो आपने कहा, he is writing कि we human beings are what we have been for millions of years, colossally greedy, envious, aggressive, jealous, anxious, and despairing, with occasional flashes of joy and affection. We are a strange mixture of hate, fear, and gentleness. We are both violence and peace. There has been outward progress from the bullock cart to the jet plane, but psychologically, the individual has not changed at all. And the structure of society throughout the world has been created by individuals. The outward social structure is the result of the inward physiological structure of our human relationships. For the individual is the result of the total experience, knowledge, and conduct of man. Each one of us is the storehouse of all the past. The individual is the human who is all mankind. The whole history of man is written in ourselves. तो हम हर व्यक्ति actually the whole history express कर रहे हैं. जो आप कह रही थी कि एक तो emptiness है और दूसरी तरफ लगता है जैसे कुछ बदला ही नहीं है. और outside world बदला है, लेकिन जो inside world है, it appears to be stagnant. Yes. So that's what he says कि इतना hollowness है कि उसको आप देखेंगे तो वो नजर आने लगेगा आपको. And the moment he says that you ask the question, how can I change? He asks us to be free from authority. But how can one be compelled to or compel oneself to come out of that authority? And what happens actually when you reject authority? So in one of the pages he writes, first of all, can you reject all authority? क्या सारी authority को reject किया जा सकता है? और अगर ऐसा होता है और ऐसा आप कर पाते हैं तो फिर उसके बाद क्या संभव हो पाता है? So if you can reject this authority, it means that you are no longer afraid. Then what happens when you reject something false, which you have been carrying about with you for generations? When you throw off that burden of any kind, then what takes place? What is available to you? So you have more capacity, more drive, greater intensity and vitality. And if you do not feel this, then you have not thrown off the burden. You have not started the dead weight of the authority. So we can see. अरे वंदना मैं आप म्यूट हो गए, एक बार अनम्यूट कीजिए जरा. हाँ. So and then most compelling thing that he says is when there is this energy which is available to you out of the rejection of authority, which comes off from throwing every form of fear, that energy in itself produces a radical revolution. Absolutely. तो वो एनर्जी जो आपको मिलती है ना उस अथॉरिटी को थ्रो ऑफ कर देने से, आउटवर्ड अथॉरिटी को भी नहीं, जो इनर आपने अपने सेंस में भी क्रिएट की हुई है, so that provides you with a tremendous amount of energy जो अपने आप एक इनर रेवोल्यूशन को, एक रैडिकल रेवोल्यूशन को जन्म देती है. And that is when you become free from fear. Absolutely. Freedom from the known, when you know that you are guided by authority. Yeah. That you are guided. तो आई थिंक जो वर्ड ही क्लियर कर रहा है, नोन, जो चीजें जो अभी तक हमें पता है एक्चुअली उसी ने रोक के रखा हुआ है, उसी से फ्रीडम बेसिकली चाहिए, है ना. और जो आपने अथॉरिटी की बात की, आई थिंक नॉट इन द एग्जैक्ट सेंस बट उसी तरीके का बैरियर कंडीशनिंग की बात वो जो बार बार कर रहे हैं, है ना. तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ आपने जो कहा उसी से मिलता जुलता मिला कि नाउ इफ यू आर एट ऑल सेंसिटिव, एट ऑल सीरियस, you will not only be aware of your conditioning, but you will also be aware of the dangers it results in, what brutality and hatred it leads to. Why? Then, if you see the danger of your conditioning, don't you act? Is it because you are lazy? Laziness being lack of energy? Yet, you will not lack energy if you see an immediate physical danger like a snake in your path. आप इसके बारे में शेयर कर रही थी. आई थिंक मुझे लगता है आप इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बता सकती हैं, जो वो उदाहरण देती हैं कि कैसे
एक सांप को जब कोई घर में देखता है और उस वक्त जो अटेंशन की बात जो आपने शुरू में की थी, अटेंशन वर्सेस अवेयरनेस, तो थोड़ा सा इस पे इस एग्जांपल के जरिए आप इस बारे में बताइए वंदना। जी, तो जो बात आप कह रहे थे कि जब एक सांप को हम अनायास अपने कमरे में देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसको हम उसमें थॉट नहीं डालते हैं। इट्स दैट वी कम इमीडिएटली टू एक्शन। और यहाँ पर क्या है, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सीइंग इज एक्शन। So that thought which compels you to come immediately into action is what is most important and what is most practical. Right. तो वो एक डाइकोटॉमी बताते हैं अटेंशन वर्सेस कंसंट्रेशन की। तो वो कहते हैं कि अटेंशन इज नॉट द सेम थिंग एज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज एक्सक्लूजन, अटेंशन इज टोटल अवेयरनेस। तो एक बहुत कंपेलिंग चीज जो वो कहते हैं कि जब भी आप चीजों को देखते हैं तो उनको टोटालिटी में देखिए, उनको फ्रैगमेंट्स में मत देखिए। जब आप फ्रैगमेंट्स में देखते हैं तो रियलिटी आपको इल्यूजनरी नजर आती है, और जब आप टोटालिटी में देखते हैं तो वो एज अ होल बहुत साफ और बहुत क्लियर नजर आने लगती हैं। तो यहाँ जो उन्होंने कहा कि अटेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, क्योंकि अटेंशन टोटल अवेयरनेस से आती है और कॉन्सेंट्रेशन में आप बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं और फोकस करने लगते हैं। जब फोकस करते हैं तो आप टोटालिटी से डिवॉइड हो जाते हैं, उसकी एक बहुत मिनिस्क्यूल पिक्चर ही आपको दिखाई देती है। आई थिंक वंदना मैम यहाँ पे जो गोट वाला एग्जांपल है वो भी बहुत रेलेवेंट होगा शायद। हाँ, मैं एक आपको वो वाला एग्जांपल भी इसमें से मैं पढ़ के बताती हूँ, जिसमें कि वो ट्रैवलिंग की बात करते हैं कि जब वो एक कार में ट्रैवल कर रहे थे जी, तो वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर नॉट ओनली ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बट आवर एनवायरनमेंट, द कलर्स अराउंड अस, पीपल, शेप ऑफ द ट्रीज, clouds, movement of water. Perhaps it is because we are so concerned with ourselves, with our own petty little problems, with our own ideas, our own pleasures, pursuits, ambitions, that we are not objectively aware. अब वो एक इंसिडेंट बताते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं एक बार once when I was in India, I was traveling in a car. There was a chauffeur driving and I was sitting beside him. There were three gentlemen behind discussing awareness, discussing about awareness very intently. Asking me questions about awareness. तो कह रहे हैं कि अवेयरनेस पर चर्चा चल रही थी, दो लोग पीछे बैठे थे और मैं ड्राइवर के साथ बैठा था, और अवेयरनेस पर ही चर्चा चल रही थी। वो मुझसे अवेयरनेस के बारे में ही प्रश्न पूछ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उसी समय पर ड्राइवर जो कहीं और देख रहा था, उसने गाड़ी को एक गोट पर चढ़ा दिया। द कार एक्चुअली रैन ओवर अ गोट। The three gentlemen who were sitting at the back were still discussing awareness, totally unaware that they had actually ran over a goat. Right. So when this lack of attention was pointed, अवेयरनेस को डिस्कस करते करते उनकी खुद की अवेयरनेस इतनी कॉम्प्रोमाइज थी कि गाड़ी एक गोट पर चढ़ गई है ऐसा उनको इसका एहसास भी नहीं हुआ। Right. So when this lack of attention was pointed out to these gentlemen who were trying to be aware, it was a great surprise to them. So this is what he says, with most of us it is just the same. We are not aware of outward things or of inward things. If you want to understand the beauty of a bird or a fly or a leaf or a person with all its complexities, you have to have your whole attention. This whole attention is what he calls awareness. Wow. तो whole attention concentration से बहुत इतर है, और कहीं बड़ा है कहीं वृहद है। तो यही जर्नी है। और मुझे लगता है इसी में embedded है the idea of action. The moment one is totally attentive about something, उसके बाद थॉट के रोल को वो डिस्कार्ड करते हैं। वो कहते हैं कि इट ऑटोमेटिकली लीड्स टू एक्शन, इजंट इट? यस। तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण वो देते हैं कि थॉट जो है वही कल्प्रिट है। सारी दुनिया थॉट के अराउंड घूम रही है और कृष्णमूर्ति थॉट को कल्प्रिट बताते हैं। वो कहते हैं कि थॉट वो है जो पास से एमिनेट होता है। आइडिया और एक्शन के बीच में जो है ना वो थॉट है। तो वो अगर आइडिया पे ही कॉन्सेंट्रेटेड रह जाए तो वो आपको एक्शन की तरफ जाने ही नहीं देता। दैट इज व्हाई ही सेज लिविंग
thought is something which is not free of memories, which is not free of past, and Right. it can be about the future also. So Mhm. it is all action and action only which takes place in the present. Right. So if you have to be in the present, you have to be in action, then you have to be in the present. Mhm. That is what he says. Right. Right. That's something he talks about pleasure versus Mhm. joy also. हाँ, मैं अभी Same आपका time, I think, on chapter 5 he wrote about self-concern, that craving for position, हम्म, fears and total fear, fragmentation of thought and ending of fear. So अगर देखें अभी जो हमने बात की एक सांप को अपने कमरे में देखने की, और जब हम बात करते हैं कि आप बात तो कर रहे हैं कि आप अवेयर हैं चीजों के बारे में या नहीं, और बात करते करते गाड़ी चढ़ गई बकरी के ऊपर, यही अवेयरनेस का लैक था उस तरीके से। तो अगर यहाँ पर वंदना मैम ने जो कहा कि वो थॉट को कल्पित बताते हैं, तो अगर हम अपने आप को भी एक सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए रख करके देखें कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात चल रही है, लेकिन विद इन लाइक 10 मिनट आप देखें कि आपके विचार कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो आप पाएंगे कि आप बैठे एक बहुत अच्छी चर्चा में हैं, लेकिन आप वहां पर मानसिक रूप से उपस्थित नहीं है, मानसिक रूप से आप कहीं और हैं। सो आई थिंक वंदना मैम उस तरफ भी हमारा इशारा करवाना चाह रही हैं, जब वो थॉट्स को ही कल्पित बता रही हैं, जो यहाँ कृष्णमूर्ति कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट चंदन आपने शेयर किया। एंड आई थिंक ये जो वॉन्डरिंग है एक जगह से दूसरी जगह सोचते रहना, इट्स समवेयर इट्स अ परस्यूट ऑफ प्लेजर, जिसका आपने जस्ट अभी डिस्कस किया, और उन्होंने प्लेजर को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। एंड आई वाज लाइक रियली thrilled to read when he writes pleasure is pain, so when you are seeking pleasure you are actually seeking pain। तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए वंदना। हाँ, तो जब वो ये कहते हैं कि all pleasure is actually pain, तो वो कहाँ से एमिनेट होता है, तो वो वहीं पर है। क्यों कहते हैं कि प्लेजर आता है डिजायर से, मतलब आपने किसी बटरफ्लाई को देखा, आपने किसी ब्यूटीफुल चीज को देखा और आप उस पर खुश हुए। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप उस प्लेजर को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, then it becomes a desire, and when you want that repetition to happen, then you attach that desire to it. Desire for that pleasure to be repeated again and again, seeking that pleasure again, seeking that power, seeking that position, seeking that dominance, seeking that thing which gives you pleasure again and again, then it becomes pain. So there's, when you are seeking pleasure, you are actually seeking pain. प्लेजर आप डिराइव करते हैं, अगर को उसको उसी मोमेंट में रह करके एंजॉय कर लें, फिर वो खत्म हो जाए, तो कहते हैं कि वो चीज आप ट्रूली एंजॉय कर लेते हैं ना, आप देखेंगे उसकी मेमोरी आपके साथ नहीं रहती। मेमोरी कहाँ जुड़ती है, जब उसके साथ थॉट जुड़ जाता है। भाई की भाषा में कहूँ तो तुलन चयन वाला मामला जब उसके साथ जुड़ने लगता है, वो फिर थॉट जो है वो एक दूसरा रूप ले लेता है, फिर वो पास्ट से गाइड होने लगता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से। तो थॉट को जब वो कल्प्रिट बता रहे हैं, तो उसको तब कल्प्रिट बताते हैं जब वो थॉट पास्ट से एमिनेट होता है, वहां से जनरेट होता है। तो वो कहते हैं कि जब आप अपनी पूरी अटेंशन देना चाहते हैं, तो जैसे आपने चंदन अभी कहा कि हम कहीं होते हुए भी हम नहीं होते, तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हम होते हुए भी नहीं होते? इसका मतलब अटेंशन का डेफिसिट है। अटेंशन डेफिसिट कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? So he says कि you have to give your whole attention, which is awareness, and you can give your whole attention only when you care, which means that you really love to understand. Then you give your whole heart and your whole mind out. Such an awareness is like living with a snake in a room. You watch every movement. You are very, very sensitive to the slightest hiss of the sound that he makes. So such a state of attention is total energy. It's such awareness of the totality in yourself which is revealed in that instant. तो जब मैं इसको पढ़ रही थी, अगर मैं अपनी लर्निंग को शेयर करूं, कुछ समय से सोच रही थी कि पीएचडी करूं, और आज अपने आप से ये प्रश्न पूछा कि करना ही क्यों चाहती हूँ और आज तक क्यों शुरू नहीं कर पाई। तो आइडिया से एक्शन वाली जर्नी के बीच में क्या था, वो था थॉट जो पास से रिलेट करता था। सो लेकिन आज जब अपने आप से प्रश्न पूछा तो लगा कि
क्या आप अपना होल अटेंशन या ये अटेंशन डेफिसिट क्यों था वहां तक जाने का? Because now I want to research, because I really love to understand. Because now I want to give my whole heart and mind to find out a solution to a problem. Right. That pressing issue in education which requires research. Hmm. When I can rise above that, me and my PhD and about my doctorate and my being a doctor, to about what is that pressing thing which requires addressal. I think वो pressing issue जब discern हो जाएगा, action अपने आप ही उसका रूप ले लेगा. तो आई थिंक अभी जो आपने अपना एग्जाम्पल कोट करते हुए भी बताया, लगता है इनको पढ़ते हुए कि his whole focus was on understanding the structure, and Yes. he is not a philosopher who proposes do's and don'ts. उसकी तो ये बात ही नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लेजर के लिए ही लिखते हुए वो स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि प्लेजर कम्स इनटू बीइंग थ्रू 4 स्टेजेस: perception, sensation, contact, and desire. I see a beautiful motor car, say, then I get a sensation, a reaction from looking at it, then I touch it or imagine touching it, and then there is the desire to own and show myself off in it. Or I see a lovely cloud or a mountain clear against the sky, or a leaf that has just come in springtime, or a deep valley full of loveliness and a splendor, or a glorious sunset, or a beautiful face. तो लगातार जो इनका फोकस है वो है कि हम कैसे स्ट्रक्चर को देखें और समझें. वंदना मैम हमारे साथ पांडे सर भी हैं, who always inspire us to engage in all such kind of work which we are doing. Sir, so we welcome you to this. और जब भी आपको कन्वीनियंट लगे, मुझे लगता है कि आप अभी भी ड्राइव कर रहे होंगे शायद, तो जब भी आपको कन्वीनियंट लगे आप तो 3 मिनट 4 मिनट समय दीजिए हम सभी लोगों के साथ. मैं कहूंगा आप सर को को-होस्ट बना दीजिए so that he can unmute himself as and when he is comfortable. Okay, perfect. जी, अगर वो अभी भी बात करना चाहते हैं तो हम, हाँ, जब भी सर को कंफर्टेबल लगे उस वक्त सर कर सकते हैं बात. एंड मीनवाइल वंदना मैम हम लोग मैं थोड़ी देर में कर रहा हूँ मुरारी जी. मैं सुन रहा हूँ कि मैं अभी बाहर हूँ. हाँ, तो हाँ, अभी आवाज आ रही होगी पीछे से. जी, ठीक है ना, तो मैं अभी करता हूँ. perfect. Thank you. And welcome Mamta Saluja ma'am also. She is there with us. She has been with us throughout this journey basically. I was right there. I was there right from the beginning. Yeah. अच्छा लग रहा था. Actually, the book that has been taken up today is very dense and profound. Absolutely. Vandana ma'am, I would like your attention on now one of the very core issue, that is the human relationship. उस पे भी इन्होंने काफी कमेंट किया है, तो आप उस पे कुछ साझा करें. लेकिन उससे पहले एक फनी या नॉट सो फनी एक एस्पेक्ट्स में डिस्कस करना चाहता हूँ कि कृष्णमूर्ति गांधी के कंटेम्पररी थे. जिस वक्त गांधी दुनिया भर में नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ा रहे थे, एक तरीके से उनका डोमिनेंस था, उस वक्त कृष्णमूर्ति नॉन वायलेंस जैसे सब पे सवाल उठा रहे थे. आई फाइंड इट एक्सट्रीमली करेजियस एक्ट कि कैसे कोई व्यक्ति मतलब जिस तरीके एक तरीके से कहें कि वो मजाक कर रहे थे नॉन वायलेंस वर्ड का. मैं अगर एग्जैक्टली वो वर्ड आपको बताऊं, in my book it is on page number 71, जहाँ पे तो मुझे ये खास करके आश्चर्य लगा कि जब गांधी जैसा पर्सनालिटी जब एक तरीके से पूरे आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे जिनका पूरा डोमिनेंस था, उस वक्त कृष्णमूर्ति नॉन वायलेंस जैसे सब को लेकर के सवाल उठा रहे थे. एंड ही राइट्स, some of us in order to rid ourselves of violence have used a concept, an ideal called non-violence. And we think by having an ideal of the opposite to violence, non-violence, we can get rid of the fact, the actual, but we cannot. We have had ideals without number. All the sacred books are full of them, yet we are still violent. So why not deal with violence itself and forget the word altogether? If you want to understand the actual you,
must give your whole attention, जिसकी बार बार बात कर रही हैं, all your energy to it. That attention and energy are distracted when you create a fictitious ideal world. तो यहाँ पे वो मुझे लगता है जब नॉन वायलेंस की बात हो रही है उसके लिए कह रहे हैं कि it's a fictitious ideal world. So can you completely banish the idea? The man who is really serious with the urge to find out what truth is, what love is, has no concept at all. He lives only in what is, that he writes. तो मुझे इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के ये वाला इनका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त जैसे पूरे दुनिया में एक तरीके से देखिए कि डेमोक्रेटिक आइडियाज का दबदबा है, तो हाउ डेयरिंग इट वुड बी फॉर सम फिलोसोफर और सम थिंकर टू टॉक अबाउट टॉक अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज. कितना साहस चाहिए ना, वरना मैम. तो वो साहस वहीं से एमिनेट होता है कि he is rejecting all authority. He has even rejected what he was a follower of, Theosophical Society. Right. And he traveled all over as an international independent thinker, and he's written all about. So non-violence ka entire idea, so that again comes from, he always wants to bring a person's attention towards the present. Yeah. इसी इन्हीं words के जिसके जंजाल में या जिसमें हम फंस जाते हैं, we get caught in the web of the words, उसी अगेंस्ट हमें वार्न करते हैं. क्योंकि वर्ड्स जब बहुत प्रोफाउंड हो जाते हैं तो कई बार उससे ऑब्सेस हो गए. अगर आपने उनका ऑब्जर्वर वर्सेस ऑब्जर्व्ड पढ़ा होगा, उसमें भी वो यही लिखते हैं कि ऑब्जर्व्ड जो है व्यक्ति, उससे आपको ऑब्सेस नहीं होना है. Just because Gandhi is preaching non-violence, but that I cannot have my own opinion about what violence or what non-violence is all about. Absolutely. Yeah. So that is from where it beautifully emanates. That's what he says, stagnation is when you don't question anything. So I think the righteous teacher जो सही तरह के questions जो है वो उनसे पूछना शुरू करे कि ना केवल ये पढ़ा देना कि नॉन वायलेंस एक आइडियोलॉजी थी जिसको पर किया जाता था, या जो आज के समय में भी रेलेवेंट है या नहीं, हम केवल इतने तक ही बढ़ पाते हैं. राइट. मगर वायलेंस की या नॉन वायलेंस की हमारी स्वयं की परसेप्शन क्या है, क्या उसको हमने कभी काउंटर किया है? तो वो एक चीज है जो उनकी उस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से, और व्हेन बीइंग फ्री, बीइंग फ्रॉम द फ्रीडम आई थिंक फ्रॉम व्हिच ही ऑपरेट्स, gives that courage to be anti-current, to be anti what is prevailing, and to be anti-status quo as well. Very interesting. And I think हालांकि हम एजुकेशन में जो रिसर्चर हैं उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च पैराडाइम है जिसको क्रिटिकल थियरी कहा जाता है. एंड क्रिटिकल थियरी कम्स फ्रॉम द आइडिया जहां आप सिमिलर फिनोमेना को नए सवालों के नजर से देखते हैं. तो हालांकि कृष्णमूर्ति को जो क्रिटिकल थियरी के प्रोपोनेंट्स हैं वो क्रिटिकल थियरी के डोमेन में रखकर नहीं देखते हैं, और वो कभी कृष्णमूर्ति चाहते भी नहीं थे कि उन्हें किसी फ्रेम में रख करके देखा जा सके. बट आई थिंक जिस तरीके से ये एनकरेज करते हैं कि हम डिफरेंट फेनोमेना को नए सवालों के साथ जोड़ करके देखें, सवाल उठाएं अपने कंडीशनिंग को लेकर के, मुझे लगता है एज ए रिसर्चर इन एजुकेशन की ये बिल्कुल क्रिटिकल थियरी के डोमेन के रिसर्चर्स को एनकरेज करते हैं कि वो रेगुलर डे टू डे लाइफ फिनोमेना को नए सवालों के जरिए देखने की शुरुआत करें. तो वंदना मैम, हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार, कुछ सवाल और जवाब भी बीच बीच में आ रहा है. कोई नेक्स्ट पैराग्राफ जो आप चाहती हैं कि उसको जरूर पढ़ा जाए, प्लीज शेयर विद अस. जी, तो जैसे आप रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो रिलेशनशिप के बारे में भी कृष्णमूर्ति बहुत प्रोफाउंडली लिखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स is based on the image forming or defense mechanism. Right. In all our relationships, each one of us builds an image about the other, and these two images actually have a relationship, and not the human beings themselves. So human beings के बीच में ये relationship नहीं है, ये relationship है उस image के बीच में जो दोनों ही व्यक्तियों ने एक दूसरे के प्रति form कर रखी है, and it is these images which have a relationship. The actual relationship between these two human beings or between many human beings completely ends when there is this formation of images. Yeah. So he writes that observing ourselves and our relationships to the society, we see that at all levels of our being, there is conflict
minor or major conflict which brings about very superficial responses and very devastating results. So man has accepted conflict as an innate part of his daily existence. Why? Because he's accepted competition, greed, absolutely, acquisitiveness, and aggression as a natural way of life. Now, because these are accepted as natural ways of life, so we don't question them. When we examine our own minds and hearts, the way we think, the way we feel, and how we act in our daily lives, we observe that as long as we conform to the pattern of society, life is going to be a battlefield. Right. If we do not accept it, then we'll be completely free from the psychological structure of the society. So what society has created in us and what we have created in ourselves are greed, anger, hate, jealousy, anxiety. And all these, we are very rich. So I think he says we're supposed to be rich. We are supposed to be now poverty ridden. And what he calls poverty is that he says this is not power. Poverty is to be completely free of society. Though one may have a few more clothes, a few more meals. Yes. So देखिए वो जो रिलेशनशिप की बात वो कहते हैं ना, वो कहते हैं वहां पर भी वो इन द प्रेजेंट मोमेंट की बात करते हैं. जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लीजिए. बहुत इंटरेस्टिंगली वो लिखते हैं कि आज और अभी में जब मैं इस बात को पढ़ रही थी तो मुझे लगा कितने सारे हमें ग्रजेस होते हैं अपने स्पाउसेस के प्रति. हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जितना समय तुम मुझे पहले दिया करते थे वो अब उतना समय तुम मुझे नहीं देते. पहले हम ऐसे किया करते थे, अब हम ऐसे नहीं करते. But then he says, then again it is the thought which is the culprit. Because with the thought you have certain memories. With these memories you are attaching certain meanings. So these meanings are again creating those thoughts which are making you to reject somebody, that he is not the way he or she used to be. But he says, यहीं पर अगर आप इसको प्रेजेंट में ले आओ तो आपको लगेगा that the other person has also evolved in these years. And there are many more things which can be celebrated today. Right. Celebrate today तो आपको लगेगा आज में ऐसा बहुत कुछ वो भी है जो वो पहले नहीं करते थे और आज कर रहे हैं. Absolutely. So when you come to the present, that is the power of it. You start acknowledging what is happening now and here. But when the past governs, you always try to equate it from where it was emanating and originating, and always comparing. And he says comparing is a sin, whether you compare yourself with others or you compare your today with what it was yesterday. So जो आपने कहा and what I could understand कि the moment we accept human also as a flowing river who is like just moving, you know, and we cannot fix them in a frame. तो शायद अगर हम इस नजरिए से देखने लगे तो बहुत सारा रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगेगा. वंदना मैम, हमारे पास टाइम की अब बहुत एक तरीके से हम इसके एंड की ओर बढ़ रहे हैं. तो इस बीच में मैं चाहूंगा कि आप कोई अपना पसंदीदा पैराग्राफ या कोई पॉइंट बताना चाहती हैं तो आप उसको ढूंढ लें. मैं तब तक सभी दर्शकों को और साथियों को बताना चाहूंगा कि इस किताब में अगर अन्य मुद्दों पे जैसे कि प्यार आपका एरिया ऑफ दिलचस्पी है तो आप पूरा एक चैप्टर डिवोटेड है, उसको जरूर पढ़ें. और बाद में मतलब हमारे कई साथी लव पोएम्स लिखते हैं, उस बारे में और समझ बनाना चाहते हैं तो एरिक फोम इस फील्ड के बड़े राइटर हैं, उनकी किताब को भी पढ़ें. हालांकि कृष्णमूर्ति आई फाउंड इज सो डीपली ही राइट्स अबाउट द थॉट्स. जॉन डिवी इस पे लिखते हैं. इसके अलावा मेरे ख्याल से बिल डुरांट लिखते हैं. ये तमाम राइटर लिखते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति ने भी थॉट्स के ऊपर हाउ डज इट टेक प्लेस एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग, जिसके बारे में बार बार वंदना मैम भी जिक्र कर रही थी, इस पे काफी लिखा हुआ है. तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं. डेथ के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है जो हो सकता है कि हमारे लिए अभी बहुत दिलचस्पी का विषय नहीं हो, लेकिन कम से कम इनको पढ़ते हुए आप उस फियर से जरूर हम बाहर आ जाते हैं. तो लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट इंटेंस इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस बुक, जो कम समय होने की वजह से हम यहाँ नहीं डिस्कस कर पाएंगे. ऐसा हर सेशन में हमारे साथ होता है, बट यू कैन. और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे साथी, जो हम सभी लोग आजकल माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन पे भी बहुत शानदार मेरे ख्याल से 3-4 पैराग्राफ इसमें लिखा गया है. तो इस सब के बारे में आप इस किताब को पढ़िए. सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि ये किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, ज्ञात से मुक्ति.
तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टाइटल देख के और कहें कि अरे ये तो अंग्रेजी में उपलब्ध है और मैं शायद हिंदी भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल होता। तो ये ज्ञात से मुक्ति नाम से हिंदी में भी उपलब्ध है और आई थिंक बहुत इजीली गूगल पे टाइप करें और मिल जाता है ना। तो वंदना मैम, इन बिटवीन मुझे लगता है आपने वो कोई शानदार पैराग्राफ चुन लिया होगा जिसको आप लास्ट में हम सबसे साझा करना चाहूंगा कि वंदना मैम बोलें। इससे पहले अगर सर पांडे सर अगर अपनी बात रखना चाहें। मैं एक्चुअली बहुत बढ़िया वंदना जी, मुझे सुनने में मजा आ रहा है और मैं अभी भी व्हील पर ही हूँ। सर अभी आप कंटिन्यू कीजिए फिर। जी जी। हाँ, तो मैं बहुत अच्छी ढंग में श्रोता हूँ और परंपरा और बहुत सुनने की इच्छा थी, लेकिन मेरे कुछ अपने एक फैमिली भी वो था तो मुझे जाना ही पड़ा, तो मैं सुन नहीं पाया एक इवनिंग में। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ये जो आपने परंपरा शुरू की है मुरारी जी, सबसे पहले तो ये आप सच में बधाई के पात्र हैं। और एक ये जो हमारे अपने लोग हैं जो अलग अलग थॉट से, अलग अलग किताबों के अलग अलग विचार, अलग अलग फिलॉसफी को पढ़कर और उसको समझ रहे हैं, उसको अपने में भी और उसके साथ एक बहुत खूबसूरत आई थिंक सर नेटवर्क इश्यूज की वजह से उनकी आवाज नहीं साफ साफ आ पा रही है। सर आप सेफली ड्राइव कीजिए। और हाँ, हम फिर वंदना जी, आप बहुत अच्छे ढंग से, मैं दो ही चीज सुन पाया है जो कि नॉन वायलेंस को कृष्णमूर्ति जी किस तरह से देख पा रहे थे और एक रिलेशनशिप की बात आप कर रहे थे। उसके पहले आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को तो रियली में आप लोगों ने इसको, आपने जो इसको पढ़ा है, देखा है, समझा है और उसको अपने उसमें कहीं ना कहीं ला रहे हैं अपने थॉट में और उस चीज को एक शेयर कर रहे हैं अभी सभी साथियों के साथ। तो ये सभी साथी सिर्फ इसमें शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बल्कि उस थॉट को पढ़ने के लिए उस थॉट की ओर भी बढ़ रहे हैं कि हम किस रूप में उस किताब को भी देखें। मेरे मन में भी ये बात आने लगी कि मैं फिर से एक बार कृष्णमूर्ति जी को पढूं और उनके साथ जीऊं। जब मैंने कभी बीएड में और ये सब चीज की थी, उनकी फिलॉसफी को मैंने देखा था, तो फिर मैं ये सोच रहा था कि छूट गया है, बहुत सारी चीजों को छूट गया है। गांधी जी से कैसे वो थे और वो अब मैं एक अब उस फिर से पढ़ने को इच्छा हो रही है कि क्या ब्यूटीफुली थॉट लेकर वो लोग आए थे और सिचुएशन जो भी रहा होगा उस समय का, लेकिन आज के सिचुएशन में भी हम उस चीज को किस तरह से देख पा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया वंदना जी, आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और इस तरह की जो परंपरा है सिर्फ ये कृष्णमूर्ति जी को नहीं बल्कि और जितने भी हैं, अब तो हमारे लिए एक डिपार्टमेंट बहुत आजादी दे दी है कि बहुत डिफरेंट टाइप्स की किताब भी हम खरीद कर उसको पढ़ें। इनफैक्ट हमारे जो 250 साथी हैं अलग अलग किताबें खरीदे हैं, एक दूसरे से शेयर करके उनसे जो भी किताबें अच्छी लगती हैं जो हम उस 20,000 में नहीं खरीद पाए, उसके अलावा भी बहुत सारे साथी के पास पड़े हैं। मैं कुछ ही दिनों में इस चीज को एक बार शेयरिंग भी कर दूंगा पूरे अपने एक बना करके किनके पास कौन सी किताब है, ताकि आप लोग उनसे बात कर सकते हैं कि हाँ शेयर कर सकते हैं, एक एक्सचेंज कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये चीजों के लिए एक शुरुआत है और ये कंटिन्यू रहे। मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि जिंदगी भर अगर कंटिन्यू रहे तो मुझे लगता है कि ये और भी अच्छी चीज है। ये नहीं कि हम हैं टीचर हैं, हम ये हैं तो हम कंटिन्यू रख रहे हैं। ये तो एक ऐसी चीज है कि जिंदगी भर, और बच्चों के बीच में भी इस चीज को मैं तो ये कहूंगा कि बच्चों को अब यहाँ से एक शुरुआत करें जहाँ की बच्चों को भी हम ये इस तरह के हैबिट को डेवलप कर सकें और उनके साथ भी वो लोग भी बैठकर इस तरह की शेयरिंग करें। तो बच्चे भी कोई भी किताब पढ़ के आए उनको शेयरिंग करें, इससे अच्छा लगेगा मुझे। छोटी किताब हो, बड़ी किताब हो, कोई भी। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू हुई है। हम आगे के जो इसको देख रहे हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ना है।
थैंक यू मुरारी जी, थैंक यू सर वंदना यहाँ जी। पर एक चीज आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही कि आज सुबह ही 2 अलग अलग साथियों का फोन आया है जिन्होंने इस लाइन में ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया है कि कैसे बच्चों को हम शामिल करें अपने इस तरह के सेशन में। थैंक यू। वाह वाह, बताइए बताइए, देखो बहुत सारे जी, ये तो बहुत पता नहीं। मैं वही बोलता हूँ ना कि लाइफ में कि देखो, मैं जहाँ सोचता हूँ वो लोग पहले ही तुम लोग सोच लेते हो, तो एक अच्छी बात है। मैं तो धीरे धीरे वो चीजों को अब देख रहा हूँ कि मेरी सोच अभी वहां पहुंची भी नहीं है कि आप लोग सोचना शुरू कर रहे हो, और इतनी खुशी होती है इस चीज से, इतनी खुशी होती है कि हम, आज ये जो मुरारी जी सोच रहे हैं, मुरारी जी ने जो शुरू किया, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, ये अच्छा आपने शुरू कर दिया, और जी, इतने ब्यूटीफुली इस चीज को लेकर आ रहे हैं आप लोग, ऐसी चीजों को। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये परंपरा को जारी रखो, और आगे और भी सोचो कि बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जिसको कि हम लोग कर सकते हैं। बच्चों को कैसे, मैं आपको एक कश्मीर की शेयरिंग करता हूँ जहाँ हम लोग गए थे। बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में किताब लेते हैं, और किताब को पढ़कर वो उनके मन में वो किताब के प्रति उसमें जो पढ़ा, उनको क्या थॉट आया, उसको वो लिखते हैं, और लिख कर वो किताब के पन्नों के बीच में वो रख देते हैं, ताकि टीचर भी आकर देखें कि मेरे मन में ये क्या आया। तो ये इतना अच्छा लगा कि लाइब्रेरी में हम सिर्फ बुक्स इशू कर देते हैं, बच्चों को बैठ के कहते हैं पढ़ो, और फिर किताब उठाकर समेट कर रख देते हैं। बच्चे वो जो पढ़े हैं, और उसमें भी ये भी देखा गया कि वो अपने में भी डिस्कशन करते हैं कि ये चीज देखें कि लाइब्रेरी के बाहर बैठ कर के ये किताब लेकर हमने किया, और ये थॉट आया, और उसको थॉट को ब्यूटीफुली वो, अगर कोई नहीं लिख पा रहे हैं तो वो कार्ड बनाकर कि इस किताब में ये चीज था, वो कार्ड बनाकर, कार्टन बनाकर, एक दो शब्द लिखकर उसको भी रखते हैं, ताकि ये किताबों से कैसे दोस्ती हो, किताबों के बीच में कैसे जा पाए, किताबों को कैसे हम उसके बारे में चिंतन कर सकें, उसके बारे में न्यू चीज निकाल कर, वो चीज बचपन से ये डेवलप किया जा रहा है। और जी, इवन कि वो लोग एक वीक मनाते हैं हर एक चीज में, और वहां तो इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चे सब इतनी अच्छी कविता और इतनी अच्छी कहानी और इतने अच्छे किताब लिख लिए हैं, क्योंकि वो पूरे एक वीक हर मनाते हैं कि भाई आपको लिखने का है, आप लिखो, क्या लिख सकते हो। और ये नहीं है कि आपको अगर प्यार की कहानी लिखनी है तो आप उसको भी लिखिए, उसको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन अच्छा ऐसा नहीं है कि हमारे तरह अरे इसको कैसे लिख दिए, तुम कैसे लिख दिए, वो चीज की है, ठीक है ना। तो जी, वो बहुत सारी चीजें हमने तो सुना उन लोगों के वहां, तो एक बच्चे का नाम ही गालिब रख दिया था, क्योंकि उसने अच्छा इतने अच्छे अच्छे शायरी सुनाया, और उसके सुनाने का जो अंदाज था वो तो माशाल्लाह, मैं तो उसको अभी भी विजुअलाइज कर रहा हूँ, जब वो सुनाता था कैसे उसका एक्शन था, कैसे वो, अरे तो वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करना, मतलब कि किताब को पढ़कर सिर्फ उसको रखना नहीं, बल्कि किताब के बारे में उस पर डिस्कशन भी और चर्चाएं भी होती हैं, और उस किताब को लेकर कई चीजों को, थॉट को लिखकर एक दूसरे अपने पास भी रखना, ये परंपरा को शुरू करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं वंदना जी, मुरारी जी, चंदन और सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं, ममता जी तो आई हैं, और वो तो मैं लगता हूँ कि ममता जी एकदम रेगुलर इस चीज को जुड़े रहते हैं। मैं तो कई बार सर आज मिस भी हमारे कर साथ जाता हूँ। पीके शर्मा सर भी हैं, और उन्होंने बहुत शानदार ओपनिंग रिमार्क और कई सारे स्ट्रेटजीज हमारे साथ शेयर किए कि कैसे वो रीडिंग को प्रमोट कौन करते हैं। कौन बीके शर्मा सर, कौन कौन बीके शर्मा अच्छा सर, अच्छा। हेमू कलानी तो स्कूल के प्रिंसिपल सर जो। जी अच्छा, बीके शर्मा जी का तो क्या कहूँ, जी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पांडे टेंशन जी मत लेना है। नमस्कार। ये जो शब्द उनका आता नमस्कार पांडे जी, कैसे ये हैं जो आप? जी, आई थिंक नेटवर्क इशू कुछ आ गया होगा। तो बेहद शुक्रिया सर, आप हौसला अफजाई के लिए, और आप जैसे ही फिर नेटवर्क आता है तो आप अपनी बात पूरा कीजिए। वंदना मैम, आपने आई थिंक सुन लिया होगा वो पैराग्राफ मेरे जो आप। नेटवर्क बीच में कनेक्ट हो गया था। अच्छा और अच्छा बीके शर्मा जी, आपका सर मैं तो क्या बोलूं, मैं तो शुरू में ही सर के लिए बोला था कि भाई वो उनके अपने एक जर्नी रही है ब्यूटीफुली, उन्होंने अपने स्कूल को और इस तरह से किया है, और बिंदास, जो कि जो भी है, किसी चीज का फिक्र नहीं है, बहुत सारे टेंशन होते हैं, ऊपर का प्रेशर उनके पास होता है। थैंक यू पांडे जी, सब आपसे मिला है। थैंक यू
जी वंदना मैम, जी एक बार फिर से आपको रीडिंग सेशन पे लाते हैं। जी, पांडे सर की प्रेजेंस हमेशा ही बहुत मोटिवेटिंग रहती है और इतनी व्यस्तता के बाद भी, ड्राइविंग करते हुए भी वो ज्वाइन कर पाते हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही एब्सोल्युटली, इंस्पायरिंग है कि एक एज अ लीडर हमने सिर्फ शुरुआत की, इट्स हिज इंस्पिरेशन दैट इज एक्चुअली फ्यूलिंग अस टू कंटिन्यू विद दिस प्रोग्राम। of course, yes, he is the fuel which propels us to move into chartered and uncharted domains. एब्सोल्युटली, So wonderful of him as a leader. So तो जो अब मैं वही पैराग्राफ पढ़ूंगी जैसे आपने मेडिटेशन के बारे में कहा था कि हम सबके एक थॉट्स रहते हैं कि एक्चुअली मेडिटेशन है क्या और मेडिटेशन किस तरह से की जानी चाहिए। सो कृष्णमूर्ति बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कि meditation is to be aware of every thought and of every feeling, never to say it is right or wrong, but just to watch it and move with it. In that watching, you begin to understand the whole movement of thought and feeling. And out of this awareness comes silence. right, Silence put together by thought is stagnation, is dead. But the silence that comes when thought has understood its own beginning, the nature of itself, understood how all thought is never free, but a thought which is always old. So he says, thought is always old. right, The silence in which you contemplate that all thought is old, all thought is emanating from past. That is what is silence. absolutely, In which the meditator is entirely absent, for the mind has emptied itself of the past. So fantastic, what can be described is the known, and the freedom from the known can come into being only when there is a dying every day to the known. So dying every day to the known is what he calls the freedom from the known. absolutely, Dying every day to the known, to the hurts, to the flatteries, to all the images that you have made, to all your experiences, dying every day, so that the brain cells themselves become fresh, young, and innocent. right, That is the freedom from the unknown, that which comes from the silence when मीटिंग को कुछ नहीं हो absent. So that is how he beautifully summarizes what he means by the freedom from the known. absolutely, absolutely, And every fantastic, day to what is known in a simple sentence. ट्रिमेंडस, बहुत शानदार। एंड आई थिंक ये सारा करने के लिए जो आपने सजेस्ट किया, चंदन जी आप कुछ जोड़ना चाहें तो आप प्लीज जोड़ दीजिए। एंड आई वुड जस्ट लाइक, चंदन जी आपको जोड़ रहे हैं प्लीज। हाँ, बस दो चीजें जो है फटाफट से कह दूंगा मैं कि पहली चीज ये कि किताब 1969 में पब्लिश हुई थी और पहली बात ऑलरेडी वंदना मैम कह चुकी है कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मेरे डिसिपाइल बनो, मुझको फॉलो करो या मेरे फॉलोअर बनो, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी बताया जा रहा है या बताने की कोशिश की जा रही है, अक्सर ये मान लेते हो कि अच्छा पावर के साथ चलोगे तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। वो उसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत तरीके से ये कहते हैं ऐसा नहीं है। द मोमेंट यू स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट, तो वो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में शुरू हो जाएगा और तब तुम्हें लगेगा कि यही पर्पस था क्या, इसी वजह से करना चाह रहे थे या इसी वजह से नहीं करना चाह रहे थे। तो वो वहां भी आपका ध्यान लेकर के जाते हैं। तो बस मैं यही कहूंगा कि जैसे भी पांडे सर भी कह रहे थे कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उसके बारे में लिख रहे हैं एक दो लाइन, तो हम जिन किताबों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं एटलीस्ट आपस में हम जरूर बात करें और साझा करें। और आई थिंक हम बीके शर्मा साहब ने भी शुरू में यही कहा था कि किताब देते हैं तो सिर्फ देकर छोड़ते नहीं है, बल्कि पूछते हैं जी क्या पढ़ा, 10 लाइन ही सही बता दो उस किताब के बारे में। तो अगर वो करें तो एक सही दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार। और ये सब कुछ करने के लिए जो हमने किताबों में पढ़ा, जो कृष्णमूर्ति बताते हैं, वी नीड अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये लास्ट पैराग्राफ में भी पढ़ रहा हूं। टू अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन इन व्हिच वी लिव एंड द फीलिंग आई मस्ट अंडरस्टैंड brings about the vitality to find out, but finding out, searching implies time, and
as we have seen, gradually to uncondition the mind is not the way. Time is not the way. Whether we are old or young, it is now that the whole process of life can be brought into a different dimension. So it is now. So I think इससे खूबसूरत लाइन मुझे लगता है वंदना मैम कि इट इज नाउ, जिसके बारे में हम लोग आपसे भी पहले भी चर्चा कर रहे थे कि इट्स नॉट अबाउट टाइम कि टाइम के साथ ये हो जाएगा. It is now if we want to bring a different dimension in our life. So thank you very much, all the friends who actually found time and spend time with us here at the Read with a Teacher program, which is not an entertaining program, which requires a serious engagement. And we all are here at Read with a Teacher are really grateful, and we extend thanks to Vandana ma'am and BK Sharma sir for spending time with us, and particularly I know this is the March and how pressed they all are, through the weeks, and still you could manage some time. So thank you very much. Now we stop the live streaming, and we may stay for a while for some question and answer. Over to you, Chandan ji. So